welcome to my YouTube channel. How is everybody doing? So guys, today I did not intend to film at all because I shot a video just day before yesterday, but today was my good hair day. So I thought कि भाई मेरे बाल बहुत rarely in my life I see good hair days. So if today is the one, I better film. Okay, so here I am today, and so today's video is about my UPSC journey. And yes, I have given the exam, and in fact I've given two UPSC attempts, and could not make it any one of them. So in this video I'll sort of talk about three main aspects of it. Firstly, why I started this journey, why at the very first place I gave this exam. So second is to why I stepped out of this journey. Like I'm not a UPSC aspirant anymore, and why that is so. That is what I'll be addressing, and the third thing will be what things you need to know before entering this sort of cycle of preparation. So yeah, without any further ado, let's get into the video. So in this video, I'm gonna be sharing my own story. So it's gonna be a more of a story time kind of video. So yeah, let's go back in time. Let's go back to when I was deciding what I actually wanted to do in life. And from the very start, I clearly remember I had this teacher who introduced us to civil services. Like before that, I didn't even know the full form of UPSC, okay? But she told us about UPSC one day, and I came back home and I searched about UPSC, and the first thing that came up was Tina Dabi's, when Tina Dabi topped the exam. And on YouTube also, I think the first video that I saw was of Tina Dabi. ABP न्यूज़ वालों की कुछ कवरेज थी, उसमें टीना डाबी के घर वो लोग गए हुए थे, and उसमें they were showing how she's celebrating. So that like really fascinated me. Like इतनी बड़ी डील होती है इसमें, ऐसा क्या है? So I went on further searching about the exam. I always wanted to be part of some kind of a service job, like a teacher or civil services for that matter, or law or judge. So those kind of jobs really fascinated me because I wanted to contribute to society from the very जब से मुझे पता था कि what I wanted to do in life, I wanted to be in some sort of a job through which I can contribute to my country in some form or the other. So yeah, that was clear. That day I decided that okay, I searched about the exam. It further fascinated me, and that's when I decided that okay, I'll write this exam. I have to prepare for it. That was when I was in 11th grade, okay? That was when I decided that I'll go forward to this exam, and every life decision then was followed by this exam. The college that I would pick up, what course would I do, how would be my schedule, at what time would I study, like newspaper reading, the habit of newspaper reading, all of those things I inculcated into my daily routine because I was aiming for something big. And मुझे इतना भी पता चल चुका था, I was not a novice. मुझे इतना पता चल चुका था कि if I want to crack this exam, it is a very very demanding paper. I would really have to put in the work. It would really demand a lot from me, my time, my effort, my blood, sweat and tears, to be honest. Anyone who's preparing for this exam or has given it already would know what I mean. So it literally requires a blood, sweat and tears, not kidding. Okay, and so yeah, मैंने तब decide कर लिया था, and I gave my first attempt in 2022. And उस टाइम पे I already like उस टाइम पे मैं 1.5 साल से पहले से prepare करी थी. I started preparing in mid of 2020. So when COVID came, it was a blessing in disguise for me because I was like कि चलो अब तो college भी नहीं हो रहा है, COVID already आ गया है, and now भी I can sit back and sort of study properly for this exam. तो 2020 के सितंबर में mid I think August July के टाइम पे I started my preparation, and 2022 में मई में ही आता है एग्ज़ाम, तो मैंने उसमें अपीयर किया, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट. आई वॉज लाइक कि मुझे हाँ आता है, ओके, आई वुड क्रैक इट. लाइक हर किसी को आई आइडिया होता है कि आप दोगे और पहली बारी में क्लियर हो जाएगा. आप अपने एक बहुत ही क्यूट से बबल में जी रहे होते हो और फिर बबल वो बर्स्ट होता है एकदम से आके. सो आई वॉज लिविंग इन माई ओन बबल. आई वॉज लाइक हाँ हो जाएगा मेरा क्लियर, ठीक है. बट उसके बाद मैं जब देखूँ अपने आप को, तो मैं बिल्कुल भी क्लियरली उस एग्ज़ाम के लिए, उस अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी. आई डिड नॉट, माई ऑप्शनल वॉज नॉट कम्प्लीट. आई चोज़ PSIR एज माई ऑप्शनल. मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं था.
मेरा एथिक्स तो मैंने खोल के सिलेबस भी नहीं देख रखा था कि एथिक्स में होता क्या है. आई जस्ट हैड दिस विविड आइडिया कि हाँ वो ऐसे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट एथिक्स का पेपर मैंने खोल मतलब देखा भी नहीं, उसका सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, नथिंग ऑफ एनी सॉर्ट. माई जोग्राफी वॉज वेरी अंडर प्रिपेयर्ड, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं थे, बट फिर भी आई वेंट अहेड एंड गेव प्रीलिम्स कि जोश था मेरे अंदर, ठीक है, जोश था बहुत ज़्यादा. मैं जोश वॉज वेरी हाई कि अभी तो बस देंगे पेपर और क्लियर कर लेंगे, फिर फतेह कर लेंगे किला, ठीक है. दैट वाज माय थिंग. तो बस मैंने दे दिया, और एग्ज़ाम वाले दिन ना जब पेपर आप देते हो आपको पता चल जाता है कि ये क्लियर होगा या नहीं होगा. तो पेपर देते सर आई वॉज वेरी, और मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी गाइस. द ब्लंडर दैट आई मेड was I had no strategy. Like strategy it's such a big thing that you need to have. वो आपका एक वेपन एक्ट करती है कि यू हैव योर ओन वेपन एंड नाउ यू कैन गो एंड फाइट द वॉर. अगर मैं उस तरीके से बोलूँ तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका एग्जाम इवेंचुअली जाएगा कैसे, आप उस दिन क्या करने वाले हो, जितनी भी प्रेपरेशन आपने करी है. एंड इट ऑल कम्स बैक टू दैट वन डे कि जब आप एग्जाम वाले दिन में आके क्या करते हो. पूरा टाइम आपने कितना पढ़ाई किया, नोबडी इज गोना आस्क यू हाउ मेनी आवर्स यू स्टडीड. ऑब्वियसली वो बाद में लोग टॉपर से पूछ लेते हैं, बट किसी को फर्क घंटा नहीं पड़ता. एवरीवन जस्ट केयर्स अबाउट कि वेदर यू हैव क्लियर द एग्जाम और नॉट, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट. तो वो स्ट्रैटेजी के बिना मैं चली गई एंड आई डिडंट नो कितने क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं. सो गाइज कैन यू बिलीव इट, आई अटेम्प्टेड आई गेस पेपर 1 के मैंने किए थे 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट. You're supposed to attempt 75 questions or more. I attempted 50 questions, and in CSAT also I attempted इतने ही 50-55. सो दैट वॉज द लेवल ऑफ माई प्रेपरेशन, आप जान लीजिए इसी से. तो बट फिर भी उस दिन मुझे पता चल गया था नहीं हो रहा मेरा क्लियर, ठीक है. मैंने आके आंसर शीट्स वगैरह वो देखी, आंसर कीज जो आती हैं, एंड आई वॉज क्लियरली नॉट मेकिंग इट. बट मैं निराश नहीं हुई. आई वॉज लाइक ओके, आई रियली गॉट टू पुट इन द वर्क नाउ. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेकेंड अटेम्प्ट, एंड दिस टाइम आई वॉज वेरी, मेरे अंदर बहुत ही बूस्ट था. मैं इसमें डूबी, गम में डूबी वाले उसमें नहीं थी कि हाय मेरा कैसे नहीं हुआ. आई वॉज वेल अवेयर कि ओके इट्स दैट काइंड ऑफ एग्जाम which will take a lot of my patience, which will test a lot of everything out of me. and इसमें बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल बात है कि अगर पहला अटैम्प्ट क्लियर ना हो तो ये वो एग्ज़ाम नहीं है कि आपने दे दिया और आप क्लियर हो गए. ये बहुत ही ज़्यादा, इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम ऑफ अ कंट्री एंड इट इज़ सो फॉर अ रीज़न. तो मैं बहुत ही श्योर थी कि मेरा नहीं हुआ तो ठीक है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है. आई विल पुट इन द वर्क एंड कम बैक नेक्स्ट ईयर. सो या उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी एंड आई वॉज वेरी श्योर कि नेक्स्ट अटैम्प्ट मुझे देना है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट. नाउ द फर्स्ट अटैम्प्ट दैट आई गेव वॉज वेरी वेरी an wise attempt, didn't know what to do exactly. But second attempt में I made sure that I know everything पहले से. I wanted to make a strategy from day one, you know, पढ़ने की भी स्ट्रैटेजी और एग्ज़ाम के दिन जो मैं करने वाली हूँ कि कैसे मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, कितना टाइम स्लॉट मैंने एक क्वेश्चन के लिए रखा है, वो सब स्ट्रैटेजी आई वॉज अवेयर कि मुझे पहले से ही डिसाइड रखनी है. आई गेव 2 months टू माई ऑप्शनल दिस टाइम, प्रॉपर अच्छे से टाइम. मैंने एथिक्स भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी भी क्लियर कर ली, सब एस्पेक्ट्स. मैंने नोट्स इतने अच्छे बना लिए गए अपने, लाइक आई एम नॉट बोस्टिंग एनीथिंग बट माई नोट्स आर वेरी वेरी गुड. आई बिकॉज मैंने उसमें बहुत एफर्ट लगाया यार. मेरे को याद है मेरी PSIR की जो नोट्स हैं, इतनी बड़ी वो फाइल बनी थी, इतनी बड़ी वो फाइल बनी थी. एंड इट क्या था वो उसमें, जैसे थ्योरी की तो बुक्स होती हैं, नो, आई ऑल्सो रेफर शुभा रंजन मैम्स नोट्स एंड दे वर गुड, नॉट दैट गुड बट ओके फाइन कि पेपर में जितना लिखना होता है आपको उतना आ जाए. सो फाइल में थे सारे करेंट इवेंट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इज समथिंग इट हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो उसमें मैंने अपना सारा हार्डवर्क डाल दिया, प्रोजेक्ट फाइल की तरह मैंने उसको बनाया था. सो एनीवेज मैं बात किसकी कर रही हूँ, या आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेकेंड अटैम्प्ट, राइट. जैसे हर एस्पिरेंट की एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको कलेक्टिवली प्रिपेयर करना होता है. यू कैन नॉट जस्ट प्रिपेयर फॉर मेंस एंड फॉर प्रीलिम्स, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स हैंड इन हैंड, राइट. तो वो भी मेरा था डन कि पहले मैंने मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करी पूरा साल, और लास्ट के 4 to 5 months में डेडिकेटेड प्रीलिम्स. ओके 4 months मैं बोलूँगी, डेडिकेटेड प्रीलिम्स एंड मॉक पेपर्स. तो yeah, everything was done. So during the course of journey, you know, I faced a lot of hurdles.
बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रहा था, स्ट्रेस वॉज देयर, एंगजाइटी वॉज देयर, थोड़ा थोड़ा सेल्फ डाउट भी पीकिंग कर रहा था कि मैं ऑलरेडी ही मेरा एक अटैम्प्ट जा चुका है और मैं अब ड्रॉप ईयर लिया है मैंने, ऑब्वियसली आफ्टर कॉलेज I've taken a drop year. And one blunder that I would say, इसके बारे में मैं आगे elaborate करने वाली हूँ, that I had no backup whatsoever. कुछ बैकअप नहीं था मेरे पास. मैंने जितना भी टाइम, अपना एनर्जी जितनी भी लाइफ में दी है वो सिर्फ यूपीएससी को दी है सिंगल हैंडेडली, और ना उसके आगे कुछ ना पीछे कुछ. मैंने कोई स्किल लर्न नहीं किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करा, मेरे को कुछ, और मैंने कभी ये सेकेंड थॉट दिया भी नहीं कि इफ़ नॉट यूपीएससी देन व्हाट. ओके, एंड उस चक्कर में आप देख लो कि मेरे पास कुछ ऑप्शन था ही नहीं. आई जस्ट हैड डू और डाई वाला सिचुएशन विद यूपीएससी. तो उसका भी स्ट्रेस था मुझे कि यार अगर नहीं हुआ, बार बार थॉट, यू नो, इट स्ट्राइक्स यू. इफ़ यू डोंट हैव अ बैकअप दैट विल स्ट्राइक यू. एंड इसके बारे में मैं आगे बात करूँगी बहुत अच्छे से डिटेल में. सो या, तो आई वॉज हैविंग सेल्फ डाउट भी कि व्हाट इफ़ आई फेल, आई डोंट हैव एनीथिंग टू गो बैक टू. अब एक और साल दूँ क्या, मतलब बहुत साल हो जाएंगे, 3 साल होने वाले थे अब तो आई वॉज़ वेरी, बार बार वो थॉट्स आ रहे थे. और बीच में ये भी थॉट आ रहा था कि एम आई डूइंग इट राइट. Like, okay, I know my intentions are clear. I stepped in this course of preparation with the aim to serve. Okay, with the aim to be able to get an opportunity to serve, and it's an incredible opportunity that you can get. Okay, तो तभी ये इतनी reputed job है कि आपको जो opportunity मिलती है वो बहुत ही एक glorious opportunity होती है to bring change in someone's life, a positive change. And the issues that were closest to my heart were, you know, education of children, empowerment of women, and environment. तो मेरे को इन 3 चीज़ों में तो कुछ ना कुछ करना ही था. That was the only reason I entered in this whole exam की cycle. ठीक है, तो मेरे था कि मेरे जो मोटिव है ना, जैसे बोलते भी है जब हम इंटरव्यूज़ में देखते हैं कि आपके मोटिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए. तो उस टाइम पे मैं थी कि यार ओके, माय मोटिव्स आर क्लियर, बट व्हाई इज़ दिस फीलिंग कमिंग टू मी अगेन कि शुड आई नॉट गिव दिस अटैम्प्ट. ये बहुत बार मुझे फीलिंग आ रही थी कि यार शुड आई नॉट गिव दिस अटैम्प्ट, क्या मैं इसको रहने दूँ, कि मैं आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट. ओके, बट उस तरफ मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि क्या मुझे अटैम्प्ट देना चाहिए कि नहीं. बट दूसरी तरफ वो फीलिंग भी थी कि भाई इट वॉज हॉन्टिंग मी कि अगर मैं ये अटैम्प्ट नहीं दूंगी और अगला साल दूंगी फिर से बैठ के. इट वॉज सच अ हॉन्टिंग थॉट फॉर मी कि यार इतना वर्क पुट इन किया है, इतना एफर्ट, टाइम. नाउ इफ़ आई डिसाइड टू गो टू स्टॉप and to not go forward with it, it would be a blunder on my side. So that was a scary thought to have. And बहुत ओवर थिंकिंग है, वो बहुत ही मेंटल स्ट्रेस का मेरे उसमें चल रहा था. और ये तब की बात है, जैन की बात है, मई में पेपर था, इसी साल की बात है, जैन की बात है और मई में पेपर है. तो इट इज़ वेरी क्लोज टू द एग्ज़ाम एंड आई वॉज फीलिंग ऑल ऑफ दोज इमोशंस. बट खैर उसके बाद मैंने क्या किया कि आई वॉज हैविंग मेंटल ब्रेकडाउन्स. ओके, this is the first time I'm being open about it because I feel that it's fine now to be open about it. So I was having mental breakdowns and I was like what is even happening? I'm not able to study properly. Exam में 6 महीने रह गए हैं. What am I gonna do? And उसके बाद I thought that okay, I need to seek a professional help. So I started taking therapy. I started taking therapy in February. Okay, because I needed to, otherwise there was no, I couldn't give the attempt basically. मैं attempt नहीं दे पाती अगर मैं professional help सीख ना करती. And alongside with it I was doing my preparation. So I was taking therapy and ताकि वो मेरे को वो thoughts and वो mental breakdown दोबारा ना हो, because exam देना है. अब कम टाइम रह गया एग्ज़ाम को. कि अब सिर्फ रहते हैं 2 महीने रहते हैं, विच इज़ लाइक अ वेरी, कब कुछ टाइम नहीं होता 2 महीने का प्रिपरेशन करने के लिए प्रीलिम्स की. ठीक है, और मॉक्स देने हैं, रिविज़न करनी है, and also everything was going, everything was haywire at that time in my life. I was overthinking, I was in stress, I was anxious, I was in self-doubt, but I also had to keep motivating myself. I also had to keep trust in myself. You know, I cannot afford to have self-doubt at that time. I could not afford to, you know, be like अब इसको अटैम्प्ट देना है कि नहीं ना. बहुत टाइम निकल चुका है अब, है ना. तो अब एंड में आके 2 महीने पेपर से पहले मैं ये नहीं बोल सकती बैठ के कि अब मुझे पेपर अटैम्प्ट नहीं देना है बिकॉज ऑफ द इमोशंस दैट आई एम गोइंग थ्रू. तो एंड दैट थॉट वॉज स्कैरी टू मी. आई वाज लाइक मैं ये सोच भी क्यों रही हूँ. ओके, आई हैव टू गिव द एग्ज़ाम बाय हुक और बाय क्रूक. तो मैंने किसी भी तरीके से अपने आप को मोटिवेट किया.
थेरेपी मेरी हो चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास अब 1 या 1.5 महीना रहता था उस टाइम पे जब मैंने अपनी थेरेपी स्टॉप करी. आई वॉज इन अ बेटर प्लेस. इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट. इफ़ यू गोइंग थ्रू समथिंग गाइज, प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन टेकिंग थेरेपी. इट्स literally the best thing that can happen to you, and it helped me a lot during the time when I needed the help the most. Okay, so बस स्टॉप हो गई थेरेपी. उसके बाद क्या हुआ, मैं मॉक्स देने लगी. ठीक है, मुझे अभी भी याद है बहुत क्लियरली जो तमाचा मुझे पड़ा था जब मैंने पहला मॉक दिया प्रीलिम्स का. मैंने पहला मॉक दिया. GS1 हैज़ ऑलवेज बिन माई प्रॉब्लमेटिक एरिया. सी सैट में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई. आई वॉज वेरी ईजिली गोइंग थ्रू द कट ऑफ कि मेरे आराम से 75+ आते थे मॉक्स में. सो उसमें मुझे कुछ टेंशन हो नहीं रही थी. GS1 की मुझे बहुत टेंशन थी. एंड GS1 का मैंने पहला पेपर लिखा है. आई रिमेंबर मैंने इतनी 3-4 बुकलेट्स प्रिंट करा ली थी क्वेश्चन पेपर्स की. तो मैंने पहला लिखा है टेस्ट एंड आई स्कोर 25. आई स्कोर 25 आउट ऑफ कितने होते हैं मुझे याद भी नहीं है, 200 और 100 जितना भी होता है, बट पूरे उसमें से 25 मार्क्स. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस. दैट वाज सच अ बिग स्लैप. दैट वाज लाइक what, like out of the entire preparation that I'm doing, I'm scoring 25. Are you kidding me? I need like 95+ more to qualify. So there was, उस टाइम पे 2 महीने रहते थे. तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि आई नीड टू बक अप, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. बहुत टेंशन का माहौल हो गया था उस टाइम पे. तो I did not stop practicing. Okay, this did not stop me from practicing. मैं हर दिन बैठ के मॉक दे रही थी. 25 आ रहे, कभी फिर 30 आए, फिर 35 आए, फिर एक बार थोड़ा स्कोर इम्प्रूव हुआ तो 55 आए. आई एम लाइक चलो आई एम गोइंग समवेयर. तो बहुत डीमोटिवेशन भी हो रही थी मुझे कि बहुत अंदर से ऐसा लगता था कि यार इट्स क्यों नहीं आ रहे मेरे मार्क्स. लाइक इट्स लाइक जब इतने टाइम से आप पढ़ रहे होते हो, एफर्ट्स दे रहे होते हो अपने, और फिर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते, तो आपको लगता है कि यार दिस इज़, आप हर चीज़ को क्वेश्चन करते हो तब, है ना. तो आई वॉज ऑल्सो क्वेश्चनिंग, बट मैं थी कि इट विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग. आई नीड टू क्लियर दिस एग्जाम. ओके, इट वॉज क्लियर इन माई हेड दैट आई नीड टू क्लियर दिस एग्जाम. दिस इज़ अ डू और अ डाई सिचुएशन फॉर मी. मेरा आगे पीछे का कुछ नहीं है. इट्स UPSC और नथिंग फॉर मी. ओके, तो दैट वॉज द माइंड सेट दैट आई हैड. एंड उस टाइम पे फिर हाँ मैं देती गई अपने मॉक्स और दे रही हूँ. सी सैट क्लियर हो रहा है. सी सैट की मुझे टेंशन नहीं थी. सी सैट मैं जब भी दे रही थी मेरे 75+ आ रहे थे. आई वाज लाइक ओके चलो दिस इज़ डन. बट GS1 वाज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. मैं 60 पे अटक गई. मेरे 60 से ना एक नंबर ज़्यादा आ रहा और या तो कम आ रहे, 58 to 60 के बीच में. आई वाज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग. लाइक इट इज़ लाइक सच, इतने बेकार मार्क्स मेरे आ कैसे रहे हैं. एंड बट फिर भी मैं हर दिन इरिस्पेक्टिव गाइज दैट फीलिंग, if any of the UPSC aspirant is seeing it, you would feel what I mean to say here. कि वो जो फीलिंग होती है ना कि आप हर दिन टेस्ट दे रहे हो एंड हर दिन आप सेम मार्क्स देखते हो, इतनी सेंस ऑफ डीमोटिवेशन और एक स्लैप पड़ रहा है आपको हर बारी टेस्ट जब देते हो. बट उसको बैठ के 2 घंटे टेस्ट देना एंड एनालाइज करना, फिर एनालाइजेशन पे वर्क करना, फिर अगले दिन उठ के उतने ही स्ट्रांगली फिर टेस्ट देना, दैट इज़ समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर. ओके, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ अंदर से सेल्फ मोटिवेशन और एक वो सेंस ऑफ होती है ना कि आप हार नहीं मान रहे हो, यू जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. तो वो that keep going वाली feeling and that feeling of not wanting to stop and keep moving forward. If you're doing this, I'm super proud of you and I'm also proud of myself for this because उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं इतना डिमोटिवेशन में भी I did not stop trying. तो मैं हर दिन टेस्ट दे रही थी और फिर एक दिन गाइज, एक दिन मेरे मार्क्स आए 80. Okay, now again it is not sufficient to sort of make it to the cutoff, but I was so proud of myself that day. I was like I sort of did it. अगर मैं वो 25 पे बैठ जाती, रुक जाती, रोती या फिर मैं अगला वो ही ना देती टेस्ट ही, तो I would have not seen this 80 वाली जो सक्सेस वाली वो आई ना मुझे उस दिन फील. I would not, I cannot express that. Amazing feeling थी वो when I scored 80 and in fact 88 थे. नहीं 80 थे. ओके, एंड मेरे पास अभी नोटबुक भी पड़ी हुई है जिसमें मैंने कुछ अपने इमोशन जाहिर करे हैं, उसको सर्कल करके खुद को स्माइली दी है. सो उस दिन बहुत प्राउड फील हुआ मुझे, बट देयर वाज अ लॉन्ग वे टू गो. लाइक 80 इज़ नॉट मेकिंग मी अ टॉपर इन एनी वे. मतलब मैं वो भी नहीं कर पा रही, कट ऑफ नहीं क्लियर कर होंगी मेरा 80 पे. तो आई वाज लाइक नो, आई नीड टू कीप गोइंग.
फिर एक दिन जब मैं टेस्ट दे रही थी तो मेरे आए गाइस 95 96, and that was a sigh of, like, I took a sigh of relief that I finally was able to, still I was not topping, like people जब मैं आसपास देखती हूँ लोगों बोलते हैं कि हाँ हाँ आराम से 104 आ रहे हैं, 106 आ रहे हैं, 110 भी आ रहे हैं लोगों के, but that 95 took me a lot of consistency, a lot from me, a lot of pushing myself every day to give that test no matter what, to study जिस टॉपिक में बार बार स्टडी जिसमें मेरे को स्कोर नहीं हो रहा है. तो उस दिन साई ऑफ रिलीफ हुआ. उस दिन आई एम लाइक ओह आई कैन डू इट, आई एम प्रिपेयर्ड. उस दिन मुझे फील आया कि ओके आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम. ओके नाउ जो भी होगा आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड. उस टाइम मैंने खुद को ये कर दिया कि यार आई कैन डू दिस. उस दिन पहले टाइम मुझे फीलिंग आई कि आई कैन डू दिस. उससे पहले मेरे साथ नहीं हो रहा था ये. इन द कोर्स ऑफ जर्नी मैंने कभी भी ना ये सॉर्ट ऑफ आप प्रे करते हो या आप मैनिफेस्ट करते हो. आई नेवर मैनिफेस्टेड टू क्लियर द एग्ज़ाम. आई नेवर थॉट कि काश मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, काश मैं टॉप कर जाऊँ, काश मेरा हो जाए. No, all I ever wanted was to give my best, to be able to give my best on the day of the exam. उसी चीज़ को मैंने प्रे किया थ्रू आउट माई प्रिपरेशन. उसी चीज़ को मैंने पूरा मैनिफेस्ट किया कि भगवान प्लीज़ आई शुड बी एबल टू गिव माई बेस्ट ऑन द डे. दैट्स ऑल आई एवर वांटेड. बिकॉज फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद जो रिग्रेट से मैं बाहर निकली थी ना एग्ज़ाम रूम के कि इट वॉज नॉट माई बेस्ट अटैम्प्ट, आई डिड नॉट डू माई बेस्ट, दैट वॉज अ वेरी बैड फीलिंग एंड अ वेरी बेकार फीलिंग होती है वो जब आपको होता है कि अ सेंस ऑफ सेल्फ डाउट वाली फीलिंग इज़ वेरी बैड. ओके सो दैट वॉज क्लियर कि जब मैं इस बार एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलूँ आई डो नॉट वॉन्ट टू फील दैट. आई वॉन्ट टू हैव अ सेंस ऑफ I want to have a sense of feeling that I did my best. Now what's going to happen will happen, but I did my best. I did the best that I could do. That was something, that was the feeling that I was longing for. And मैं इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करती थी कि बस मैं उस दिन अपना बेस्ट दे पाऊँ. That's it. So yeah, अब now cut to the day of the exam, 28th में इसी साल 2023. इसमें सेकेंड अटैम्प्ट. टेंशन मुझे हो रही है. एक दिन पहले नींद नहीं आती है किसी को भी, मेरे को भी नहीं आई. आई barely slept for 3 hours. आई रिमेंबर मैं रात को 2 बजे सोई थी बिकॉज आई वॉज लाइक मेरे को उस टाइम पे लग रहा था मेरा कुछ प्रिपेयर्ड ही नहीं है. होता है ना जब भी कोई एग्ज़ाम होता तो मैं इतनी रात तक भी नोट्स बना रही थी. मैं पता क्या कर रही थी, लेट मी जस्ट शो यू. सो गाइस दिस, ये दिख रहे हैं, ये ऐसे चिट्ठियाँ नोट से आगे पीछे पूरा पेज, ये G20 कंट्रीज़ की थी. ठीक है, तो ये मैं एक दिन पहले बैठ के करी थी कि मुझे लास्ट मोमेंट रिविजन पे ऐसे स्टेपल करके मैंने प्रॉपर देखो ऐसे फोल्ड कर रखा है कि इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन है और इसके बाहर भी. ठीक है, सो मैं दिस एक रात पहले कि मैं फटाफट लिख लूँ ताकि लास्ट मोमेंट पे मुझे रिवीजन के लिए वो ना करना पड़ेगा ना, मुझे मेरे को आंखों के सामने होगा तो जल्दी से रिकॉल हो जाएगा. सो इसलिए नींद तो नहीं आती गाइस किसी को भी. आई गॉट यू. ओके बट फिर एग्ज़ाम देने गए ना, और मेरे को ट्रैवल करना होता है. आई एम फ्रॉम अम्बाला एंड माई सेंटर वॉज इन चंडीगढ़. तो वो एक सफ़र भी होता है कि यार अब ट्रैवल करके जाना है, उसमें ओवर थिंकिंग का टाइम मिल गया ना हमें, करेंगे हम ओवर थिंक. तो हमें ओवर थिंकिंग मेरे को हो रही थी. बट आई वॉज एबल टू समहाउ बी काम. आई वॉज लाइक आई हैड दिस कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट ओके आई कैन डू इट. एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट दूँगी. ठीक है, तो मेरे अंदर ये एक जो था ना कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस लाता है. तो मेरे अंदर वो सेंस ऑफ कामनेस थी. तो हम एग्ज़ाम हॉल में गए और आई वॉज काम. आई वॉज नॉट ओवर थिंकिंग कि क्या होगा, आ जाए, ये नहीं आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. आई वॉज काम. आई वॉज लाइक मेरे को काम रहना है क्योंकि पेपर विल ऑलरेडी मेक मी अनकाम. ओके, पेपर इज़ गोना बी दैट वे. तो मुझे काम रहना है. सो आई वॉज काम एज आई कैन बी. पेपर आया और इस पेपर देख के मैं ऐसे थी कि आई ओपन द पेपर. ठीक है, एंड आई वाज लाइक व्हाट ऑन अर्थ. अब मैं आजू बाजू में देख रही हूँ, मेरे साथ के रो मेरे जो एस्पिरेंट्स बैठे हैं उनके मुंह से भी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनकी भी, कि ये क्या देख लिया हमने, भूत. नॉट लेस देन अ भूत, ट्रस्ट मी. तो मैंने भी देखा. मैंने कहा ओ माई गॉड, द एंटायर पैटर्न ऑफ द पेपर वॉज चेंज्ड. दिस लाइक मैंने मॉक्स दिए थे कुछ 40 to 45 मॉक्स, एंड it was not like any of the mocks that I've given ever. It was something new, कुछ विचित्र प्राणी. Okay, and I was like what
what is these questions? I've not seen these kind of questions in any test that I've given, in anything that I've done. And I was blown away, my mind was blown away. हर किसी की मैं शक्ल देख रही हूँ, सबके निकली हुई हैं हवाइयाँ. But still I managed to calm myself. I'm like, I took a deep breath. I'm like, I've got this, I can do this, you know. Now this is a do or die thing for me, right? This अभी timer चालू हो गया है. I have to attempt the paper. I cannot be like कि I cannot be in shock. I have to attempt the paper and give my best at it and clear it. That's my main aim today, and I cannot just stay in that state of mind. तो मैंने अपने आप को उस टाइम पे मोटिवेट किया 1 मिनट में कि you know what, I've got this, I can do it. We just have to be calm and take one question as it is. And बस मुझे अब ध्यान से सोच के क्वेश्चन पढ़ना है. और मेरी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इन प्लेस थी कि मुझे कितना टाइम किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाना है. तो पहले आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें हमेशा जो कि आपको आते हैं. ऑलवेज गो फॉर क्वेश्चंस दैट यू नो, सो दैट आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इनिशियली बूस्ट अप हुए आपको कि ओके यू कैन डू इट, इट्स नॉट दैट टफ. तो मैंने भी सबसे पहले पॉलिटी PSIR वॉज माई USP. आई वेंट टू दैट और मैंने अटेम्प्ट करना शुरू किया. एंड गाइज, पर मेरे को वो शॉक एब्जॉर्प्शन जो होनी चाहिए ना इनिशियली, वो हो नहीं रही थी. बिकॉज कितना बड़ा शॉक था एब्जॉर्ब करने के लिए यार, ये कि पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है. आप पहली बार ही किसी टाइप का पेपर दे रहे हो. यू नो, इट वॉज नॉट लाइक एनी अदर, एज आई सेड, इट वॉज नॉट लाइक एनी अदर टेस्ट दैट I've given before, any kind of paper I've ever seen. तो स्टिल मैंने कहा चलो देखते हैं, ठीक है. आई स्टार्टेड गिविंग एंड फिर पेपर का वो दिया मैंने. आई वॉज एबल टू अटेम्प्ट दिस टाइम 72 to 73 क्वेश्चन आई गेस. तो मैंने कहा चलो ठीक है, अटैम्प्ट तो ठीक हो गया, इतना बुरा नहीं हुआ. मैं पिछले अटैम्प्ट में 50 करके आई थी. एंड कट ऑफ तक तो हो जाएगा मेरा, अगर यू नो अगर मेरे आंसर सही हुए तो आई वॉज लाइक, पता नहीं मेरे को उस टाइम क्या फील हो रहा था. मैं थोड़ा ट्रॉमा में तो थी पेपर देख के, बट आई डोंट नो मेरे को फील क्या हो रहा था उस टाइम पे. बट आई वॉज लाइक ओके, अभी चलो ये हो गया ना, अभी CSAT आएगा. तो CSAT तो मेरा अपन का है, CSAT क्लियर. आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट विद CSAT. आई वॉज लाइक ये अपन करेंगे, ये करेंगे, ठीक है. CSAT देखते हैं अभी. सो नाउ वी आर इन द एग्ज़ाम हॉल, ऑल रेडी टू गिव CSAT. तो CSAT का पेपर आया. तो CSAT में ना मेरी हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है दैट आई वुड लाइक टू शेयर, किसी के अगर 1-2 इंसान के काम आ सके, कि मेरी हमेशा से ये रहती है कि मेरे को 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है. 55 भी नहीं, 50 इज़ ऑल्सो फाइन. मेरे को 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. और उसमें से मेरी मैं एक भी क्वेश्चन मैंने आज तक अपना मैथ्स का सॉल्व नहीं किया. उसमें मैं अटैम्प्ट ही नहीं करती, बिकॉज मेरी मैथ्स गाइज गुल है, गुल बटा सन्नाटा है उसमें. तो मैथ्स मैं कभी करती नहीं हूँ सॉल्व. मेरे को तो देखेंगे नहीं, अपन उस तरफ जाएंगे ही नहीं. तो व्हाट आई डिड वाज, अब मैथ्स नहीं करनी है तो अपनी बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी. सो आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन माई कॉम्प्रिहेंशंस एंड लॉजिकल, ठीक है. तो मैंने हमेशा से वही अटैम्प्ट किया है. एंड आई वॉज एबल टू स्कोर अबव द कट ऑफ एवरी सिंगल टाइम. तो यही था मेरा भी कि सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशंस करेंगे. वी विल गिव 45 मिनट्स टू कॉम्प्रिहेंशन, 40 मिनट्स टू लॉजिकल, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम टू सी द क्वेश्चन जो देखने में टफ लग रहे हैं बट मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. मैथ्स में ओनली वन टॉपिक आई वॉज अवेयर ऑफ, दैट वाज नंबर सिस्टम. मुझे सिर्फ वही आता था, ठीक है. तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड मैंने कुछ देखा ही नहीं. मतलब मैं ये क्रैप देख ही नहीं रही, मैं इस पर जाऊँगी ही नहीं. तो मैंने वो देखा भी नहीं. तो मैंने खोलना शुरू किया, कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करा. आ रहे हैं मुझे सवाल, आई एम लाइक ओके आई नो. आई वॉज नाउ, अभी चलो लॉजिकल खोलते हैं. लॉजिकल पे गई मैं भाई. एक तो मेरे को आ नहीं रहे सवाल समझ आते. आई वाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ लॉजिकल इज इट, ओके. एंड चलो मैं करना शुरू करी हूँ. एंड लॉजिकल के भी वो वाले क्वेश्चंस तो है नहीं जिसमें मैंने माहिरता हासिल करी हुई है. कुछ अलग ही टफ, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग लॉजिकल. एंड मेरा बहुत टाइम जा चुका है और मैं अपने एक्वायर्ड अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं पहुंची हूँ उस नंबर तक. फिर मैंने कहा चलो मैथ्स खोल लें. मैथ्स के तो गाइस भूल ही जाओ. मैथ्स के तो मेरे को अटेम्प्ट में क्या करूँगी, लाइक आई कैन नॉट टेक द रिस्क. ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होती है. तो मैथ्स में अटेम्प्ट तो क्या करूँगी, मुझे सवाल ही नहीं समझ आ रहा है लिखा क्या है स्टेटमेंट में, कि करना क्या है बे मेरे को है. आई वाज लाइक क्या हो रहा है यार. बट स्टिल दे दिया हमने अटेम्प्ट, और मतलब दे दिया वो हमने पेपर. एंड मैं बाहर आई. आई वाज लाइक स्टिल कॉन्फिडेंट कि चलो मैंने क्वेश्चंस अपने डिजायर्ड नंबर के करे हैं अटेम्प्ट. कॉम्प्रिहेंशन में आई एम वेरी श्योर. एंड मैंने लॉजिकल के भी वही करे हैं जिसमें मैं श्योर हूँ, ठीक है.
बट स्टिल मेरे को चल गया पता कि भाई इन्होंने ना सी सैट भी घुमाया है, मतलब सी सैट इज़ ऑल्सो नॉट द सी सैट दैट वी यूज टू गिव है इसमें, ये दिस इज़ नॉट द सेम सी सैट दैट आई, जहाँ तक मैं ये जितने अटैम्प्ट करके मैं आई हूँ। तो या उसके बाद आई केम बैक होम, ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा मैंने, 2-3 घंटे बाद आई रीच्ड बैक होम। आई वॉज टायर्ड बिकॉज माई ब्रेन वॉज ओवर यूज्ड, आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट द पेपर। उस टाइम पे थोड़ा बहुत रहता है आपको, मेरा मन कर रहा था मैं आंसर की भी देख डालूँ, सारी रिलीज़ हो जाती हैं, बट आई सॉर्ट ऑफ डिड नॉट। मैं उस टाइम नहीं, अभी कल सुबह देखेंगे जो होगा। तो नेक्स्ट डे मैंने कंपेयर करी अपनी आंसर कीज़, और रिएक्शन देखा मैंने आसपास का, एंड रिएक्शन वाज सो एक्सट्रीम। लाइक आप जब पेपर देते हो ना, तो आप नहीं सोचते हो कि इतना नहीं सोचता आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी या इतना मुश्किल पेपर आ गया या ऐसे। बट जब मैं रिव्यूज़ देख रही थी एग्ज़ाम के, आई वाज लाइक डैम, दिस वाज द टफेस्ट एग्ज़ाम, आई मीन दिस वाज द टफेस्ट पेपर in like 10 years. 2023 का prelims was the toughest paper in 10 years, and that was when I realized कि they really twisted this time, they really sort of changed the entire pattern, and इन लोगों ने बहुत ज़्यादा upside down कर दिया सब कुछ। and तब मुझे रियलिटी हिट हुई कि यार हाँ, पेपर बहुत ज़्यादा ये वो था, मतलब दिस पेपर वॉज नॉट द सेम, दिस पेपर वॉज टोटली और फिर मैंने जब ध्यान से एनालाइज किया तो मुझे दिखने लगा कि पेपर कितना ज़्यादा लक बेस्ड था। पेपर वॉज नॉट नॉलेज बेस्ड, पेपर वॉज लक बेस्ड। क्वेश्चंस ऐसे थे कि सपोज मैं अगर बोलूँ कि क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फिर क्वेश्चन आया है, लेम सा क्वेश्चन देती हूँ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और ऐसे दे रखे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। अब मुझे पता है आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए। अब नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है आंसर एनी ऑप्शन ए, एनी 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, एनी 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब जो इंसान समझ रहा है कि आर्टिकल 21 शुड बी द आंसर, उसने कर दिया एनी 1 ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ओके। और मेरे हिसाब से मैं समझ रही हूँ कि आर्टिकल 16 है, मैंने भी किया, ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट। ही अटेम्प्टेड इट रॉन्ग बट ही गॉट द मार्क्स, ओके। आई ऑल्सो अटेम्प्टेड द क्वेश्चन बट आई ऑल्सो गॉट द मार्क्स, बट राइट कौन था? राइट तो मैं थी ना, सामने वाले को भी मार्क्स मिल गए। तो आई वॉज लाइक कि यार ये लक बेस्ड पेपर था, एंड इट वॉज नॉट इंटायरली लक बेस्ड बट इट वॉज अ लॉट लक बेस्ड। और जब मैंने ध्यान से एनालाइज किया कुछ टाइम बाद बैठ के, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितना ही बकवास पेपर था ये, निहायती बकवास, लक बेस्ड, ना सर ना पैर, लाइक इतने लेम क्वेश्चंस, हार्डली एनी क्वेश्चंस, लाइक मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चंस वर फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड फ्रॉम द बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स दैट वी स्टडी, एंड हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चंस आए। बाकी सारे मतलब बिना सर पैर के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अराउंड लाइक 20-25 क्वेश्चंस वर टोटली इलॉजिकल। एंड आई एनालाइज करने के बाद मुझे पता चला यार इट्स गोना बी टफ, इट्स आई डोंट थिंक लाइक, उस टाइम पे मुझे लगने लग गया कि क्या इफ़ आई एम गोना मेक इट और नॉट। उस टाइम पे आई वाज सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट। एग्जाम देने के 2 दिन बाद ही आई वाज श्योर दैट आई वाज नॉट मेकिंग इट, क्योंकि मैंने आंसर की टैली कर ली थी, मैंने कुछ 4-5 जगह की आंसर की टैली करी, ध्यान से ओवर थिंक किया पेपर को आगे रख के कि कुछ बुक से भी आंसर्स मैच करने की कोशिश की, एंड तब आई वाज श्योर दैट आई वाज नॉट मेकिंग इट, एंड दैट वाज द मोस्ट डेविस्टेटिंग डे आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ, बिकॉज आई डोंट नो, इट्स रियली फील्स, अभी भी मुझे गूज़बम्स आते हैं जब मैं सोचती हूँ कि यार that has to be the biggest setback of this year for me, the biggest setback. I would not say failure, because it taught me things that I never would have learnt otherwise, but it has to be the biggest setback of this year, hands down. Like any other aspirant, I was devastated. I sort of didn't talk to anyone for the next 2-3 days.
I was very depressed. I was like, I don't know what to do in life now, because this was to be my third attempt and this also failed. I failed this also. उस टाइम पे जो मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है, ऐसे गिरा है, सेल्फ डाउट हियर, it was self doubt, you know. I absolutely was in a very very bad mental health state. And but you know, that made me realize a lot of things. So now here comes the aspect to we'll discuss about the third aspect that I talked about, is the things that I wish I knew before, and what was my reason to stop that journey. So yeah, let's get into that now. I started seeing the other side of the coin. Okay, अब तक मैं क्या था ना, मैंने इस यूपीएससी के पूरे एग्ज़ाम को, और इवन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द वन हु होल्ड्स दिस एग्ज़ाम, मैंने उनको बहुत ही इधर रख रखा था. लाइक आई सॉर्ट ऑफ वाज प्रीचिंग इट. आई वाज सीइंग इट एज द अल्टीमेट थिंग, एंड I feel like I glorified it. I over glorified this entire thing. The UPSC journey, the UPSC, the results, the institution that holds this exam, this very exam. I sort of held them in such a high virtue that I was not, you know, willing to see the other side of the coin. I was not willing to see the other side to it. Okay, so now अब जब मुझे धक्का लगा, and I was like, I was right, like I hit my rock bottom that day. That's when I started to think and see the other things that I was not able to see till now. उस टाइम पे मुझे realize हुआ कि यार I was preparing for so many years, worked so hard, didn't do anything. I did not do anything in my college life that people my age were doing, are supposed to do, have experiences, enjoy. Okay, and I made this UPSC the sole purpose of my life, only to one day realize that, oop, it's a luck-based paper. Only to see that some crap questions would be asked and it will be a luck-based paper, and it will be no way a judgment or a test of whatever you have studied, but a judgment of how lucky you are. Okay, so that realization really hit me. I was like, oh my god. Like, I thought that I was the fool the whole time to be running behind this institution, to be running behind this exam, to be making this exam bigger than the whole universe probably for me, to not see that the things that are the loopholes that it has. Okay, and firstly that, and apart from that I also saw कि यार एक सेकेंड, 5 लाख लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, राइट? ठीक है, ये एग्ज़ाम द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, और you know, only the cream of the students get selected after giving this exam. तुमने एक बहुत अच्छा बना रखा है स्ट्रक्चर की prelims, then mains, then interview. Okay, that's fine, that's totally fine. A very nice way to filter students who you think are not worthy, by the way. But has this whole system ever thought of the students who make it to prelims but not able to make it to mains, or make it to the mains but not able to make it to the interview, or even spend so many years just on the prelim stage but not able to qualify? Nobody gives a shit about those students. Nobody gives a flying fuck about those students. Nobody is ready to sit back and decide the future of those students ki what will they be feeling, or how demotivated will they be, or how hopeless utterly and helpless would they be, because they have given, probably I have just given 3 years of my life. Just मैं इसलिए बोल रही हूँ because people out there have given 6 years, 7 years, 5 years of their life to this exam and still not being able to make it, you know. But and nobody gives a shit about them, right? What about them? Like, so are you trying to say कि जिस बच्चे ने 5 साल बैठकर इस एक एग्ज़ाम को दिए हैं अपने 5 साल लाइफ के, that's a lot of time. That's a lot of time to give to an exam. Even 1 year is a lot to give for one exam, trust me. अब I can say this, उस टाइम पे मेरे को लगता था कि यार ये भी कम है. Okay, so are you trying to say कि 5 साल जिस बच्चे ने, या 3 या 4 साल भी जिसने लगाए हैं इस एग्ज़ाम को देने में, वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसको कोई उसके बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं. उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, जस्ट बिकॉज ओ बट यू डिडंट मेक इट टू द लिस्ट. उसने दिन रात पढ़ाई करी है,
वो पता नहीं कैसे कैसे मोटिवेटेड खुद को रखता होगा, कैसे कैसे खुद में होप इनकलकेट करता होगा एट टाइम्स व्हेन ही वुड सी टोटल डार्कनेस. एवरी टाइम ही यूज टू इतना हार्ड वर्क वो डालता होगा, ओनली टू रियलाइज दैट नो वन गिव्स अ शिट अबाउट हिम. जब तक लिस्ट में नाम नहीं आया तब तक तुम्हारी किसी को कुछ नहीं पड़ी है, तो और 5 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं गाइस ये एग्ज़ाम. 5 लाख स्टूडेंट्स, 1000 सेलेक्ट होते हैं. तो तुम क्या फुद्दू समझते हो बाकी सारे बच्चों को कि क्या चल रहा है ये? इट इज़ अ गैम्बल. एंड I only when I sort of stopped seeing and stopped glorifying it, then I started to see the true aspect of it. Then I started to see ki, oh my god, this has an uglier side to it which I was not able to see before. Okay, all ये सब सही है कि it gives you an incredible opportunity. Yes, it does. I mean, it makes you an officer. What else you need? It puts you up at a pedestal. It gives you the power to make decisions, powerful ones. It gives you the power to change lives. That it does. No one is taking that from this. But at the same time, isn't it a gamble? You don't care. You don't give a shit about those 4 lakh or 4.5 lakh students that are sitting. All you care about is who is making to the list. राइट. सो लॉटरी चल रही है क्या ये? किसी जिसने भी इतनी प्रिपरेशन की है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है हाउ दैट स्टूडेंट इज फीलिंग, हाउ डीमोटिवेटेड, अटरली डीमोटिवेटेड एंड होपलेस एंड हेल्पलेस दैट पर्टिकुलर एस्पिरेंट इज फीलिंग. नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट देम. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार ये इतना बड़ा गैम्बल है. ये मतलब gamble hai. I gave this exam, I sat for this exam, I did all this hard work and I made UPSC my life only to realize that it's gonna select people who are lucky. And the whole thing about changing the pattern of the exam, like why would you do that? Why on earth would you do that? Listen, when an aspirant steps into this journey of UPSC, in this cycle of UPSC, we are well aware कि हमें क्या करना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. वी आर वेल अवेयर कि दिस इज़ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस कंट्री. वी आर वेल अवेयर कि ये क्या क्या रिक्वायर करेगा. ये हमारे ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स तीनों रिक्वायर करेगा. वी आर अवेयर. We are not stupid if you're sitting for this exam, and if we have decided to give 1 year or 2 years of our life to this exam, we are not stupid. We know. Okay. तो पैटर्न क्यों चेंज कर दिया तुमने बे? पहले क्या कम टफ दे रहे थे भाई? अगर तुम्हें करना ही है तो तुम पेपर को टफ बना दो, उसको 5 times मोर टफ बना दो. देन वील नॉट क्वेश्चन यू बिकॉज वी नो कि टफ तो पेपर आना ही है. देन प्रॉब्ली इफ द पेपर वुड हैव बिन टफ, आई वुड हैव गिवन द नेक्स्ट ईयर वाला अटेम्प्ट. आई वुड हैव सॉर्ट ऑफ अपीयर्ड इन 2024. मैं 2024 के अटेम्प्ट के लिए इस टाइम प्रिपेयर कर रही होती अगर पेपर टफ आता. पर तुमने पेपर लक बेस्ड बना दिया. तुमने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया विदाउट एनी रीज़न टू इट. व्हाट इज़ द रीज़न टू इट? क्या पहले पैटर्न में पेपर जब तुम बना रहे थे तो क्या IAS ऑफिसर्स नहीं बन रहे थे? IPS ऑफिसर्स नहीं आ रहे थे? क्या जो तुमने पहला पैटर्न बनाया वो कम टफ था तो और टफ कर दो, और टफ कर दो. व्हाई ऑन अर्थ वुड यू डिसाइड टू फूल स्टूडेंट्स? व्हाई डू यू नॉट गिव अ शिट अबाउट एनीवन्स हार्ड वर्क और anyone's journey? That's what I realized about UPSC, and I was like, oh my god, I would not step in this loop, this endless loop and this gamble again ever in my life. I'm stepping out of it. If it will be my call, I would get that call in the future years, and I would sort of then come back into this loop when I'll be in a much secure place. Abhi to I don't know anything what else after UPSC, what if not UPSC, but I'm not gonna step in this loop ever again because I am able to see a side which I was never able to see. But now if I'm able to see the other side of it, I'm not gonna step in again here. No, I want to do something. If I want to make a change, UPSC is not the only way to bring about changes, So another thought that I was going by, because मैंने UPSC को do or die बना लिया था. Okay, if not UPSC, there's nothing in the world. Okay, I had such a narrow mindset at that point because I was not able to see the endless opportunities that you can get to serve the society and to do something about the causes that actually you want to work for. तो मेरे को लगता था कि अगर मुझे सर्व करना है या मुझे इन कॉजेज़ के बारे में कुछ करना है, ओनली UPSC इज़ द अल्टीमेट थिंग दैट कैन हेल्प मी डू दैट. ओके, बट
Now it's not the case. There are so many other ways in which you can serve and do something about a cause if you actually want to. If you actually want to, intent is still the same. My intention is still the same. If I'm stopping being an aspirant right now, it doesn't mean that I don't want to work in this particular aspect anymore. It doesn't mean that I don't want to create a difference anymore. It just means that it just means that I'm changing the road that I was traveling before to reach my goal. I can definitely meet my goals even now without not going on that road and same path. Okay, so yeah, I felt like I felt like I was fooled. I felt like this this has been an injustice to me, and to not only me, to most of the aspirants who were equally competitive and who were equally worthy aspirants of becoming officers, but they were just not, they were just given the stupid paper. They were just given this stupid paper to be like, okay, this stupid paper will decide whether you are worthy of becoming an aspirant or not. This is bullshit. Okay, so yeah, that's what was my reason to step out, and I'm glad that I stepped out of that, because that cycle was, the lessons that I learned, I will share those lessons. Of course, I learned a lot from this journey. Strong I am, how much patience I have. It taught me to be patient, it taught me hard work, it taught me discipline, it taught me, you know optimism, that you have to stay optimistic no matter what in this journey. It taught me the most beautiful lessons, but that doesn't make me want to stop from things that I want to share here. That will not stop me from sharing the uglier aspects of UPSC. I will share it because I think it's true and nobody talks enough about it, and I will talk about it. So yeah, the lighting is not good, guys. अंधेरा हो गया बाहर. I'm talking like कब से. So this comes this is the last aspect of the video. Now I want to talk about the things that you need to know before attempting this exam. Okay. Your intent should be clear. What are you going, why are you giving this exam, why you want to be in this whole loop, why do you want to enter this cycle of preparation at the very first place? Because आपको motivation सिर्फ और सिर्फ आपका clear intent रख पाएगा. You will not be able to stay motivated if you're going in for power gain, if you're going in because it's glamorous, because it's everyone is doing it so I have to do it. No, you will only be able to sustain in this hard, extremely hard journey when you know that your intent is pure and your intention is clear, and when your intention is pure as in that you want to serve, you want to make a good difference in someone's life. That is the kind of belief, that is the kind of intention that will sustain you in this journey, help sustain you. So yeah, the second one is, please don't give this exam, don't prepare for this exam in college. Please take a year after college, prepare for this exam, और उसके बाद आप एक और साल एग्ज़ाम लीजिए. Please don't prepare this exam in college. Prepare for this exam in college, in first year of college. जब भी आपका college है, don't prepare this exam because you are ruining your college life. आपको college मज़े मारने के लिए, it's a phase, it's a beautiful experience. It's a beautiful opportunity that you have to experience beautiful things for yourself, to learn, to unlearn, to enjoy as much as you can. Don't pressurize yourself उस time पे. प्लीज़ डोंट डू दैट. आप उसके बाद एक साल लीजिए और तब आप अटेम्प्ट दीजिए, तब आप प्रिपेयर कीजिए. इट्स ऑल फाइन, बट डोंट स्टार्ट द प्रिपरेशन. थोड़ा बहुत यू कैन स्टार्ट द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग, मेकिंग नोट्स अबाउट द सोर्सेज दैट यू विल इवेंचुअली पिक अप टू स्टडी. ये सब आप कर सकते हो, but don't get into the hardcore preparation while in college. Please, that's such a big thing that I've learned. Apart from that, the biggest takeaway from this journey was that please have a plan B. Please have a plan B. I have not had a plan B. I still don't have a plan B. I am, तब से मुझे ऐसा धमाचा पड़ा है यूपीएससी का कि अब तक मैं उसमें हूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है, बिकॉज दैट इज़ अपेरेंटली द ओनली थिंग आई एवर वर्शिप्ड एंड ड्रीम्ड, एंड दैट वाज माई ओनली गोल. बट नाउ I never thought of plan B, and now I'm just like,
starting from scratch, you know, which abhi I have, you know, abhi मेरे को लग रहा है थोड़ा better situation है, but please don't put yourself in that uncomfortable situation. It's a very, very bad situation to be in. You know, please have a plan B with yourself. You have to be sure कि okay, if this doesn't work, I'm gonna put my 100% in here, but if this doesn't work, my next plan is ready. I can surely I can surely go back to that plan. Okay, ऐसा अपना प्लान कुछ रखो, चाहे आगे मास्टर्स का चाहे एंट्रेंसेस का, बट प्लीज़ 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 बी श्योर ऑफ योर प्लान बी. Don't just go in with an attention कि okay, I have only one plan and one, this is UPSC is it, and I'm going to go and I'm going to clear it. That's you'll be lucky, and if you clear this exam, but 0.1% is the success rate, guys. Let's be practical here. Let's not, you know, be overly emotional. To not see the practicality of this, please have a, like, it's very 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 important to have something to fall back to. Please, you know, अगर आपका एक ही चीज़ रही होती है, उसमें भी आप नहीं सक्सीड कर पाते हो, तो फिर जो आप रॉक बॉटम हिट करते हो एंड उससे निकलना इज़ वेरी टफ. ओके, आई हैव बीन थ्रू दैट, आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दैट फेज ऑफ फिगरिंग आउट माई लाइफ फ्रॉम स्क्रैच. So it's a tough situation to be in, and please don't put yourself in that situation, please. So yeah guys, that's all from my side. I really hope that this video will be of some help to you, will give you some perspective, because I wish I had this kind of perspective when I was preparing for this exam. I wish I had not over glorified this, because लोग glorify कर लेते हैं कि 6 attempt दिए हैं उसने और उसका सीधा आया rank 1, but you've got to see what that person went through in the period of 6 years. Probably shit, probably so much डिफ़िकल्टीज दैट वी कैन नेवर इवन इमेजिन. ओके, तो हम सिर्फ एक वो देख लेते हैं कि अरे उसका रैंक 1 आ गया या इतनी रैंक आ गई और ही टॉप द लिस्ट. वी हैव टू सी व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू, एंड इफ नो वन इज अंडरस्टैंडिंग यू, you know, I can totally feel it. It's a very overwhelming place to be in a very different way. But yeah, I hope this video is of some help to you. It gives you some perspective. And yeah guys, thank you so much for watching. See you soon. तो गाइस, इतना मैंने बोल लिया इस बारे में. प्रॉब्ली दिस वाज द हार्ड टॉपिक टू टॉक अबाउट. मेरा पूरा मुंह गर्म हो गया इस टाइम पे. इट्स लाइक इट्स हॉट. ओके, एनीवे, सो अ लिटिल मैसेज टू एनीवन हु हैज़ नॉट सक्सीडेड एनी एग्ज़ाम, नॉट ओनली दिस, नॉट ओनली यूपीएससी, एनी एग्ज़ाम जिसमें भी आपने बहुत ट्राई किया और आप उसमें सक्सीड नहीं कर पाए. फर्स्टली, I'm proud of you, and secondly, please remember that any exam does not define you. आपको जितना भी बुरा फील हो रहा होगा, आई नो यू मस्ट बी फीलिंग वेरी वेरी बैड, टेरिबली बैड, दैट यू नो वाई मी इज द क्वेश्चन you must be asking yourself right now. But trust me, no exam can ever define you. You know, it will not decide whether you're worthy of becoming someone or not. It will not decide whether you're worthy of something or not. An exam can never decide that. And you are worthy if you have given any number of attempts to anything, if you have worked hard for it, if you have pushed yourself through any difficult situation, if you have you know, voluntarily motivated yourself to keep going forward, you can achieve anything in this world. You know, sky is the limit for you. So yeah, don't let one exam define you, babe.